Hello guys, hello students, welcome to the next lecture of electrochemistry. Now in this lecture I am going to start the second part of the electrochemistry, that is electrogenesis. If you remember from my previous lecture, I have discussed that electrochemistry can be divided into three parts, that is electrolysis, electrogenesis and electrolytic conduction. We have already discussed electrolysis where with the expense of electrical energy you bring about chemical reaction, that's a non-spontaneous chemical reaction. And second is electrogenesis. Now what is electrogenesis? Genesis means generating electricity via chemical reaction, and the chemical reaction will take place spontaneously by itself. ठीक है, so chemical reaction होगा by itself due to which electricity is produced. मतलब in short we are making a battery, a cell. Okay guys, so second part of the electrochemistry is electrogenesis. Now in electrogenesis we convert chemical energy into electrical energy. Basically we are making a cell, battery, which are also called as, the cell is also called as galvanic cell or voltaic cell or electrochemical cell. Now these two names, galvanic and voltaic, is on the basis of the scientists, that is Louis Galvanic and Alexandra Volta. Those who have worked in field of electrogenesis, generating electricity, making a battery जहाँ पर electricity could produce होती है on the expense of chemical reaction. So basically electrogenesis is a spontaneous phenomena. ठीक है, the reaction is taking place by itself. Chemical reaction से electricity खुद से produce होगी. When you mix chemical, when the chemical comes in contact, they generate electricity depending upon the potential difference. Potential difference होने के वजह से electron flow होने लगता है from one end to the another end. Basically from anode to cathode you have studied in the electrolysis. Same flow of electron होगा. So electrogenesis is basically generating electricity via chemical reaction. This is a spontaneous type of method where the chemical reaction is taking place by itself to generate electricity. Okay, but आपने जब भी एक बैटरी देखा होगा, सिंपल बैटरी, कोई भी बैटरी होगी, उसमें दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड. इट मीन्स द एंटायर सेल, द एंटायर बैटरी जो आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, that is made up of two half cell. One will be called as anodic half cell and second will be called as cathodic half cell. Okay, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रोजेनेसिस हो रहा है, that cell is made up of two half cell. Half cell. तो half cell 1, half cell 2. Okay. Now remember, मैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड में डिवाइड करता हूं टू मेक द कॉन्सेप्ट इजी, जैसा IUPAC ने बताया स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से. वन हाफ सेल इज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड, आई एम रिडिंग एट लेफ्ट हैंड साइड फॉर द रिप्रेजेंटिंग इट, एंड अनदर हाफ सेल इज रिटन एज राइट हैंड साइड. सो अ सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल. लेफ्ट हैंड साइड विल बी द एनोडिक हाफ सेल एंड राइट हैंड साइड पे इट विल बी कैथोडिक हाफ सेल. नाउ डू यू रिमेंबर एनोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन. मैंने सिखाया था एनॉक्स. सो इन दिस हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, इन दिस हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन विल टेक प्लेस. ओके, नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट मींस दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई. योर reduction potential will be very high, matlab tendency to undergo reduction, here the tendency to undergo oxidation will be very high. So if here the tendency of undergoing oxidation is very high, then the tendency undergoing reduction is less, and here the tendency of undergoing reduction will be more. So one will be called as, this half cell will be called as oxidation half cell, and this will be called as reduction half cell. ठीक है, so one will be having a greater reduction potential, one will be having a lesser reduction potential. So we talk only in the form of reduction potential, which makes the subject easy. Now this oxidation half cell and reduction half cell, when they are being connected via
Salt bridge allow the flow of ions and electrical conductivity. We'll talk about that. When you connect them, that's make the entire cell, and the electrons start flowing from anodic half cell, and it is going to the cathodic half cell and through the entire circuit. So basically a battery is made up of two half cell. A cell is made up of electrochemical cell is made up of two half cell. Galvanic cell is made up of two half cell. Anodic, cathodic. Acha. Anodic पे oxidation means less reduction potential. Cathodic पे reduction means greater reduction potential. And when you connect this two half cell via salt bridge, which helps in electrical conductivity and neutrality, the electron will start flowing from one of the half cell, that is anodic, and goes to cathodic, and the electricity is produced by itself spontaneously by the means of chemical reaction. So basically ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि we have a left oxidation anode, and in this case, in case of electrogenesis, anode will be having a negative charge and cathode will be having a positive charge. आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, बिकॉज आपने एनोड कैथोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया है. यहाँ हम लोग बैटरी बना रहे हैं. सो दैट इज वाई here the anodic becomes negative and cathodic become positive, और उसका रीजन है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू विल कम टू नो इट व्हेन यू लिसन टू मी द एग्जांपल्स, यू विल कम टू नो इट. But the process of anode and cathode is in both the case remain constant. Electrolysis में anode पे oxidation होता है, electrogenesis पे भी anode पे oxidation होगा. मतलब oxidation process remain common from both the cases, but the charge will be different. Electrolysis में आपने anode positive पढ़ा था क्योंकि आपने उसको positive terminal बैटरी से connect किया था. Here the anode becomes what? Negative because of deposition of electron. You will come to know about that. So you need to remember कि electrochemical cell consists of two half cell. One of the half cell will be lone, left oxidation, anode negative. Remember, left oxidation, anode negative. And for cathode, you remember right reduction, cathode positive, RRCP. So remember this, lone and RRCP. मतलब short form में we have left oxidation, anode negative, right reduction, cathode positive. Both of them are connected via a double vertical line which represents salt bridge. Salt bridge से दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया. So remember this simple shortcut to remember what is electrochemical cell. Now let's take an example to understand कि रिएक्शन कैसे हो रहा है. एक सेल बना के देखते हैं. Let's take an example of Daniell cell to understand electrogenesis. So I'll rub this out. अभी तक के कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है. लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव. आई विल रब दिस आउट एंड देन मेक अ Daniell cell to explain it. Okay, so entire cell is made up of two half cell. One is called as oxidation half cell and second will be called as what? Reduction half cell, and both the half cells are connected to each other via a salt bridge. So now let us take an example of a Daniell cell to understand how the electricity is being produced. Okay, so Daniell cell consists of two half cell. एक आपका हो जाएगा एनोडिक हाफ सेल और एक होगा कैथोडिक हाफ सेल. लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड. तो एग्जांपल देखो, आई हैव टेकन अ बीकर consist of 1 molar ZnSO4 aqueous solution which has Zn2 plus ions. In this, you dip a small strip of zinc rod, zinc in solid state. तो zinc is dipped into a solution of its own ion. Own ion मतलब इसमें zinc rod is dipped into a solution of Zn2 plus because obviously इस solution में will be having lot of Zn2 plus inside as well as SO4 minus 2. So here we can say a metal is dipped into a solution of its own ion. Now you take another beaker. It also consists of an aqueous solution. Let us consider this aqueous solution as 1 molar CuSO4 aqueous solution. Now you dip a copper rod in this.
सो कॉपर इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन Cu2 प्लस आयन. सो इसमें Cu2 प्लस और सल्फेट आयन है, इसमें Zn2 प्लस और सल्फेट आयन है. ठीक है. नाउ यू कनेक्ट दिस. यहां पर हम लोग एमीटर कनेक्ट कर देते फॉर द रीडिंग ऑफ द करंट. ठीक है. एंड योर वी आर प्लेसिंग अ सॉल्ट ब्रिज. तो देखो क्या हो रहा है, पहले मैं फंक्शंस वर्किंग सिखा दूंगा, फिर क्यों हो रहा है वो बताऊंगा. सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब which has a gel inside. इसमें जेल filled है, that is agar gel obtained from a plant, organic gel, and a solution of salt. Either it can be a KCl solution which have K plus Cl minus, or it can be NH4 NO3 solution which have NH4 plus and NO3 minus, or it can be a KNO3 solution which has K plus and NO3 minus. इसमें से आप कोई भी एक solution ले सकते हैं और different आते हैं salt solution. So basically it's a U-shaped tube consist of a gel. वो gel के अंदर salt solution है, वो इसके लिए ताकि salt solution जब आप इसको dip करो यहाँ से गिर ना जाए. Plus you have a cotton plugged here with glass wool, with glasses. So this is basically glass wool in the end. आपने कॉटन और ग्लास को प्लग किया है टू होल्ड दैट जेल. वो जेल के अंदर आयंस है K प्लस Cl माइनस के. सो यू टेक अ बीकर में अगार जेल, उसमें KCl सोल्यूशन डालो, थोड़ा मिक्स करो, यू फिल दैट इन अ यू शेप ट्यूब एंड प्लग दैट यू शेप ट्यूब विद ग्लास वुल और इन्वर्टेड फॉर्म में डिप कर दो. ठीक है, ताकि आयंस फ्लो हो सके सोल्यूशन के अंदर. नाउ द मोमेंट यू डिप दिस KCl का सॉल्ट ब्रिज, moment you dip it, ammeter will start showing the reading. ammeter reading बताएगा, करंट बताएगा कितना फ्लो हो रहा है. एंड इन द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ Daniell cell, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सोल्यूशन जो बना है वो 1 मोलार का होना चाहिए. तो 1 मोलार है, देखो दोनों सोल्यूशन. टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. और अगर गैस होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में सोल्यूशन की जगह गैस होता है, तो इट विल बी टेकन एज 1 atm प्रेशर पे गैस लेना पड़ेगा. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इन इलेक्ट्रो. तो हम लोग ने स्टैंडर्ड कंडीशन लिया है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर फ्लो होगा. एंड आपको पता होता है हर बैटरी पे एक पोटेंशियल लिखा होता है. सो फॉर दिस बैटरी विच इज बिन क्रिएटेड, एमीटर एक रीडिंग बताएगा एंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी comes to around 1.1 वोल्ट. तो Daniell सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल है. बैटरी पे लिखा रहता है 1 वोल्ट, हाफ वोल्ट, 2 वोल्ट्स. सो इट हैज़ 1 वोल्ट का 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल है. तो आप करंट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है. तो क्वेश्चन ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. सो नाउ जिंक इन जिंक सल्फेट इज वन ऑफ योर हाफ सेल. तो दिस इज योर हाफ सेल 1, दिस इज योर half cell 2. It is connected via salt bridge. Okay. Now, when zinc is dipped into a solution of its own iron and is connected with copper, then this half cell and this half cell will have different tendency of undergoing reduction and oxidation. ध्यान रखना. When these two half cells are being connected, then they have a different tendency of undergoing oxidation and reduction. मतलब जब आप कोई भी हाफ सेल बनाते हो, वहां पर 2 प्रोसेसेस हो सकते हैं. एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक होता है रिडक्शन प्रोसेस. बट either oxidation will be more than reduction or reduction will be more than oxidation depending upon the other half cell अटैच टू इट. बिकॉज एक हाफ सेल का पोटेंशियल दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल में फर्क होता है. सो इन Daniell cell, the left hand side, that is zinc in zinc sulfate, has a greater tendency of undergoing oxidation. So this becomes the oxidation half cell, and it has a greater tendency of undergoing reduction. So this becomes a reduction half cell. पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है. So in case of zinc and zinc sulfate, it has a greater tendency of undergoing oxidation. So it is a oxidation half cell. मतलब यहाँ पर reduction potential बहुत कम होगा क्योंकि oxidation potential ज़्यादा होगा. अच्छा, here in this case
इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग रिडक्शन, तो दिस इज अ रिडक्शन हाफ सेल, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. So one has a lower reduction potential and one has a higher reduction potential. So this potential difference will help to electron to flow from one end and goes to the another end, and then we call as EMF of the cell or the electromotive force of the cell. Okay, so this is the oxidation half cell and this is the reduction half cell. अच्छा, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है. You need to understand one simple thing. Remember this for your information कि whenever you create one half cell, suppose आपने एक half cell बनाया, half cell different types के हो सकते हैं. हम लोग ने simple half cell लिया है, that is metal dips into a solution of its own ion. So आपने कोई metal लिया है और उसी के आयन Mn plus में इसको डिप किया, जैसे zinc in Zn2 plus, Cu in Cu2 plus. So when metal is dipped into a solution of its own ion, a half cell, it has two types of tendency. It can undergo oxidation, that is loss of electron, called as de-electronation, that is loss of electron, and it also undergo reduction. Reduction मतलब क्या हो गया, gain of electron, that is electronation. So दो प्रोसेस इसमें हो सकते हैं. ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ज्यादा होगा या तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से कम होगा, और अगर दोनों सेम हो गए तो वो नल इलेक्ट्रोड बन गया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो रहे, नल इलेक्ट्रोड हो गया. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन अ मेटल इज डिप्ड टू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. याद रखने का, वो दोनों रिएक्शन में जाएगा, बट एक रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा और एक रिएक्शन बहुत कम होगा. वो डिपेंड करता है दूसरे हाफ सेल पे कि दूसरा हाफ सेल क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर इन दिस केस ये आपने एक हाफ सेल बनाया. इस हाफ सेल को जो आप दूसरे हाफ सेल के क्लब कर रहे हो, तो यहां पर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स, एंड Mn प्लस इज फॉर्म, मतलब मेटल जो है अपने सरफेस पे Mn प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाएगा. इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रह जाएंगे और सरफेस से क्या अंदर गिर जाएगा, Mn प्लस, m raised to n plus goes into the solution. This is the oxidation reaction. तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, and very few Mn plus will gain electrons to form m in solid state. मतलब यहां से Mn प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके m में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज रिडक्शन. सो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये आपका रिडक्शन प्रोसेस है. ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रिडक्शन बहुत कम हो रहा है इस हाफ सेल में. सो इस हाफ सेल के जो पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, दैट पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे E नॉट ऑक्सी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, क्लियर है. बट याद रखने का, यहां पर भी दो टाइप के प्रेशर जरूरी होते हैं. इसमें एक सोल्यूशन प्रेशर होता है, दैट इज बीन डेवलप, बट ये चीज में जाने की आपको जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू टेक टू हाफ सेल एंड कनेक्टेड, तो एक हाफ सेल की टेंडेंसी होती है ज्यादा ऑक्सीडेशन में जाने की और बहुत कम रिडक्शन में. सो यहां पर इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन oxidation reduction, मतलब in this half cell both the process are taking place, but one process is taking place at a very large extent and one taking place at a small extent. So इस half cell को हम लोग oxidation half cell बोलेंगे और anodic half cell. अब हो सकता है कि आपने half cell लिया, उसमें reduction potential बहुत ज़्यादा हो as compared to oxidation. So that half cell will be called as what? Reduction half cell. और उसमें जो पोटेंशियल मेजर होगा दैट इज कॉल्ड एज ERED, रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे E नॉट RED, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो वी हैव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट ज्यादा हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की. मतलब हियर वी कैन से कि इट हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इट हैज वेरी लेस रिडक्शन पोटेंशियल. सो वन ऑफ द हाफ सेल विल हैव अ लेस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, and one of the half cell automatically will have a greater reduction potential. ये हमको कब मालूम पड़ेगा? when you connect them, then we'll come to know कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन सा ज्यादा रिडक्शन में जा रहा है. So two processes can be take place when you connect half cell. हर हाफ सेल में दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट एक प्रोसेस दूसरे से बहुत ज्यादा होता है and that depends when you connect the half cell with the other. ये जरूरी है, बिकॉज अब दो हाफ सेल को कनेक्ट करोगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये हाफ सेल में लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल कितना है
ऑक्सीडेशन में जाने का, और राइट हैंड साइड में पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन में जाने का, ठीक है। सो दिस इज बेसिक आइडिया। सो नाउ फ्रॉम योर इट इज बीन क्लियर, यहां से अभी तक हम लोगों को क्लियर हो गया है कि one of the half cell is oxidation half cell and one of the reduction. मतलब when zinc is added into zinc sulfate and connected with copper into copper sulfate, then zinc in zinc sulfate has a greater tendency of undergoing oxidation. क्यों? Because oxidation potential of zinc is greater than copper, or you can say reduction potential of copper is greater than zinc. So we can write down here for Daniell cell you need to remember in this case first point is कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu इन CuSO4, सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो आपने कॉपर को डायरेक्ट कॉपर सल्फेट के कॉन्टैक्ट में डाला तो सिंगल वर्टिकल लाइन, रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक डिप्ड इन ZnSO4 सोल्यूशन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है इट विल अंडरगो रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन का होगा जिंक पे, तो ये आपका बन गया एनोड लेफ्ट हैंड साइड, और ये कॉपर आपका क्या बन जाएगा, कैथोड, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होगा राइट हैंड साइड। सो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा लोन, और यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो जिंक पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। कैसे, जिंक इन सॉलिड स्टेट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक एंड पास Zn2+ आयंस इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इस सरफेस से सॉल्यूशन में क्या गिरना चालू हो जाएगा, Zn2+ इन मोर अमाउंट। कोई बोलेगा सर यहाँ रिडक्शन होगा, जिंक प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, हाँ रिडक्शन होगा बट नेग्लिजिबल अमाउंट, मैक्सिमम इट विल बी ऑक्सीडेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ जिंक एंड जिंक आयन फॉल फ्रॉम द जिंक सरफेस इनटू द सोल्यूशन। इसका मतलब जिंक रॉड का साइज कम होता जाएगा क्योंकि जिंक आयन सोल्यूशन में आते जा रहे हैं, जिंक डिसॉल्व होते जा रहा है, तो यहां पर द साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, साइज इसका कम होगा। इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ गए, इलेक्ट्रॉन किसके सरफेस पे, एनोड पे, इसके लिए एनोड को यहां पर क्या चार्ज दिया गया है, नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक एंड कम ऑन टू द सरफेस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह पे पोटेंशियल है हायर रिडक्शन का, एक जगह पे पोटेंशियल है लोअर रिडक्शन का। सो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइविंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड, दैट इज एनोडिक एंड इनटू द कैथोडिक एंड, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट 1.1 वोल्ट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, नाउ व्हाट विल हैपन, इन कैथोड देयर विल बी अ रिडक्शन। रिडक्शन कैसा होगा कैथोड पे, कैथोड पे जो Cu2+ आयंस है सॉल्यूशन में, Cu2+ in which solution, in aqueous solution, will jump on the rod, gain those 2 electrons and form Cu in which state, solid state। इसका मतलब यहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा, इसका मतलब यह है कि कॉपर का मास बढ़ेगा, मतलब साइज ऑफ कॉपर रॉड विल इंक्रीज क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है? So when you talk about the net reaction, you cancel out 2 electrons which are common, so you get zinc solid plus Cu2+ aqueous gives Cu solid plus Zn2+ aqueous. This reaction is called as net cell reaction for Daniell cell. Okay, so एनोड हो गया, कैथोड हो गया, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो, बिकॉज जब आप 2 हाफ सेल कनेक्ट करते हो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल का। एक जगह पे इट विल बी हायर रिडक्शन पोटेंशियल, एक जगह पे इट विल बी अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट इनटू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन where one going oxidation, one going reduction, and the electrons start flowing from one end to the another end, and the electricity is generated. So this is a very beautiful example of electrogenesis, how electricity is generated. Now let us talk about salt bridge. मैंने आपको बता चुका हूँ
A salt bridge is a U-shaped tube, glass tube, which is filled with the agar gel plus a salt solution. The ends are plugged with glass wool so that gel बाहर नहीं आ जाए जब उसको आप inverted form में रखो, ठीक है. प्लस जेल क्या करेगा, आयंस को होल्ड करेगा जो उसके अंदर है. अब सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? तो सबसे पहला रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू कनेक्ट टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली. क्यों इलेक्ट्रिकली? सिंपल है, ध्यान दो. इन दिस हाफ सेल देयर इज अ लॉट ऑफ जिंक आयंस आर बीन प्रोड्यूस इनसाइड. जिंक आयन अंदर आ रहे हैं, मतलब कौन से आयंस आ रहे हैं? पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन, यहां पर जो Cl माइनस है, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द सॉल्यूशन. अच्छा, यहां पर बहुत सारे Cu2 प्लस आयंस कम हो गए, मतलब पॉजिटिव आयंस कम हो गए, मतलब नेगेटिव आयंस बढ़ गए. नेगेटिव आयंस बढ़ गए मतलब यहां से K प्लस ऑपोजिट आयंस जाके यहां फ्लो होने लगेगा. तो जब आयंस फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मिलता है. तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वाया फ्लो ऑफ आयंस. अच्छा, जो आयंस फ्लो हो गए, Cl माइनस इधर जाएगा, K प्लस इधर जाएगा, तो ये जाके किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे आयंस, दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. सेकेंड, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी, यस. यहां पर ज्यादा जिंक आयन होने की वजह से दे विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस. तो वो पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस आयन विल रन हियर, ऑपोजिट आयंस. तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बैलेंस हो गए. प्लस if Cu2 plus is lost, if Cu2 plus get deposited on the surface of copper, the positive ion from this solution reduces, and the sulfate ions, obviously sulfate ion जो है वो negative ions है, वो बढ़ेगा. अगर negative ions बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए K plus आ गया, तो K plus will start flowing here. So electrical neutrality दोनों जगह वो मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, एंड इट डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स. ये दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसके लिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स. ये हमेशा याद रखने का. एंड द बेस्ट यूज इज KCl. क्यों? बिकॉज उसका स्पीड, ट्रांसफर नंबर सेम है. ट्रांसफर नंबर मीन द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आर सेम. तो एट द सेम टाइम दे विल रीच to the different half cell and maintain electrical neutrality and electrical contact. That is the role of salt bridge. अगर salt bridge निकाल दोगे कोई current flow नहीं होगा क्योंकि circuit break कर दिया है. So this is a sort of internal circuit where there is a flow of ions, and this is a sort of external circuit where there is a flow of electrons, and the flow of electron will take place, remember, will take place spontaneously by itself. वो खुद से flow होता है because of the difference of potential in two half cell. तो दो हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज, लेटर कॉल्ड एज द पोटेंशियल और द EMF ऑफ द सेल. ओके गाइस, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोजेनेसिस. अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन याद रखने का कि इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं. आई विल रब दिस आउट, यहाँ नीचे कर लेता हूं. रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड. याद रखो, सिंगल वर्टिकल लाइन मींस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड डबल वर्टिकल लाइन मींस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब बराबर देखो, सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को आपस में ज्वाइन करता है इनडायरेक्टली. इट मींस बोथ द सॉल्यूशंस आर नॉट मिक्स्ड बट दे आर इन कॉन्टैक्ट वाया सॉल्ट ब्रिज. मतलब सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये इलेक्ट्रिकल इनडायरेक्ट. तो इसके लिए इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को डबल वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अगर मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में याद रखने का, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? जिंक आ रहा है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इट इज जिंक विच इज इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ZnSO4 एक्वस स्टेट. उसका स्टेट लिखने का, प्लस ब्रैकेट में उसका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लिखने का. 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर. अगर गैस है तो 1 atm, 2 atm, 3 atm प्रेशर आएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया. देन राइट हैंड साइड, अब बराबर देखो, मैं सिर्फ सीक्वेंसली जा रहा हूं. हियर यू हैव जिंक, सोल्यूशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, इसके लिए सिंगल वर्टिकल लाइन मींस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, याद रखने का. फिर ये सोल्यूशन किसके कॉन्टैक्ट में? सॉल्ट ब्रिज के. तो सॉल्ट ब्रिज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो डबल वर्टिकल लाइन. तो दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन.
देन सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के। देख लो, डिप किया आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, रॉड से कांटेक्ट में नहीं है, सोल्यूशन के कांटेक्ट में। तो सॉल्ट ब्रिज is in contact with CuSO4 aqueous solution which is also 1 molar. Now this solution is in direct contact with rod, so single vertical line with Cu in which state? Solid state. Now zinc को हम लोग ने क्या चार्ज दिया है? नेगेटिव, बिकॉज लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड हियर, तो कैथोड यहां पर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो जिंक पे देखो नेगेटिव डाल दिया, यहां पर पॉजिटिव डाल दिया। जिंक रॉड से कॉपर रॉड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एंड कन्वेंशनली कॉपर से जिंक तक करंट फ्लो होगा। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल। तो सेल रिप्रेजेंट करने के लिए दो हाफ सेल लिखने का, आप देखो अगर किसी ने यहां लिख दिया Cu और यहां लिख दिया CuSO4 तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज Cu के कांटेक्ट में थोड़ी ना है, सॉल्ट ब्रिज Cu के कांटेक्ट में नहीं है, कॉपर सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं है, इट इज इन कांटेक्ट विद CuSO4, सो यू हैव टू मेंशन इट प्रॉपर्ली। यू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, रॉड, solution में salt bridge again solution rod, and then you have a electrical wire contact where the electron is flowing. So this is how you represent a Daniell cell. Okay guys, so it's very simple to understand electrogenesis. तो हमेशा एक चीज याद रखने का electrogenesis में, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, डबल वर्टिकल लाइन यानी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट दैट इज सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट से राइट पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, राइट से लेफ्ट पे करंट फ्लो होता है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोजेनेसिस। विल मूव अहेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स आफ्टर दिस। Okay guys, after the discussion of electrogenesis with the help of a Daniell cell, now let us try to understand different types of electrode, means different type of half cells. Half cell कितने कितने टाइप के होते हैं? half cells को electrode भी बोलते हैं. So let us talk about types of half cells. Type of half cells मतलब we are talking about types of electrode. Okay, the first type of electrode is metal ion electrode. Very simple. In this, a metal is dipped into a solution of its own ion. याद रखने का, metal is dipped into a solution of its own ion. For examples हम लोग ने ले लिया zinc solid, it's dip मतलब direct contact, तो single vertical line into a solution of ZnSO4 aqueous of certain molar. So this is an example of metal dipped in a solution of its own ion. Its own ion मतलब this can also be written as in zinc solid is dipped into a solution of Zn2 plus aqueous. एक ही बात हो गई, क्योंकि इसमें भी जिंक आयन है, तो आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. Now when you use this, when it act as anode, ये जो इलेक्ट्रोड है हाफ इलेक्ट्रोड, अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा, तब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा. तो ऑक्सीडेशन में जाएगा इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन जिंक सॉलिड स्टेट में विल फॉर्म Zn2 प्लस विच गोज इनटू एक्वस सोल्यूशन एंड लीव्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सरफेस. लेकिन अगर यही राइट हैंड साइड होगा मतलब कैथोड की तरह, तो रिएक्शन उल्टा जाएगा. तो आपको रिवर्स रिएक्शन लिखना है. रिवर्स रिएक्शन मतलब अगर इट इज इन राइट हैंड साइड एक्टिंग एज कैथोड, ये एनोड था एक्टिंग एज कैथोड, देन इट विल बी जिंक आयन फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक इन द सॉलिड स्टेट. एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल Cu सॉलिड डिप्ड इन CuSO4 एक्वस सोल्यूशन या Cu2 प्लस, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. देन यू कैन हैव मैग्नीशियम डिप्ड टू सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, Cd इंटू सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. आपने लिख दिया Al सॉलिड डिप्स इंटू अ सोल्यूशन ऑफ Al3 प्लस एक्वस या AlCl3. तो इसको आप कैथोड और एनोड दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो. अगर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो आपको मालूम है रिएक्शन क्या होगा? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu. एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन. देन यू हैव अ Cd डिप्ड इनटू अ सोल्यूशन ऑफ Cd2 प्लस सॉलिड इनटू एक्वस सोल्यूशन. सो देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स. बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं जहाँ पर मेटल को आप उसी के आयंस में डिप करते हो. एंड व्हेन इट एक्ट एज एनोड तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो. व्हेन इट एक्ट एज कैथोड राइट हैंड साइड तो रिडक्शन रिएक्शन लिखो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या एक्ट कर रहा है. तो दोनों रिएक्शन सेम ही होते हैं बट रिवर्स फॉर्म में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल यार Cu 0 से +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप लिखोगे, इसका रिवर्स आप रिडक्शन में लिखोगे. Al
0 से +3, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिवर्स क्या हो गया, रिडक्शन. CD+2, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, इसका रिवर्स क्या हो गया, रिडक्शन. CD2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव CD, रिडक्शन हो गया. सो यू कैन यूज दिस as one of the electrode. The second type of electrode is non-metal ion electrode, also called as gas electrode. Non-metal gas है, तो गैस इलेक्ट्रोड के लिए आपको गैस चाहिए, बट गैस जो है वो सोल्यूशन में तो रहेगी नहीं, तो इट हैज टू बी एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट मेटल लाइक प्लैटिनियम, क्योंकि प्लैटिनियम इनर्ट मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. सो वेन एवर देर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, हाफ सेल गैस इलेक्ट्रोड, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मेटल, यू टेक हेल्प ऑफ प्लैटिनियम एज अ इनर्ट मेटल. फॉर तो मैं लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड में वी टेक अ इनर्ट मेटल, ठीक है, लाइक प्लैटिनियम, उसके सरफेस पे आप कोट करोगे किसको, गैस को. आपके पास जो नॉर्मली पूछता है एग्जाम में, दैट इज क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा. तो गैस को आपने कोट किया, देन इट इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन. फॉर एग्जाम्पल समझो मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की, तो उसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, आप ले लो प्लैटिनियम, सॉलिड होता है, तो प्लैटिनियम के सरफेस पे हम लोग क्या कोड कर रहे हैं, H2 गैस ऑफ सर्टेन ATM, 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, जो भी आपको बनाना है. स्टैंडर्ड होगा तो 1 ATM यूज करने का, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इज कोट विद प्लैटिनियम, तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब प्लैटिनियम के सरफेस पे आपने हाइड्रोजन गैस को कोट किया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड देन दिस एंटायर प्लैटिनियम विद हाइड्रोजन कोटेड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन में जब आप डिप करोगे उसके अंदर आयंस होंगे हाइड्रोजन के, तो दैट इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ H+ आयंस इन एक्वस मीडिया ऑफ सर्टेन मोलार, 1 मोलार, 2 मोलार, 3 मोलार, जो भी आप बना रहे हो. कोई इसकी जगह पे HCl लिख देता है, no problem, because HCl also consists of what, hydrogen with +1 charge, so it's fine. So this is hydrogen gas electrode. Okay, now you have to remember, in standard condition, if it is taken as standard condition, मतलब HCl आपने लिया है 1 मोलार और हाइड्रोजन गैस है 1 ATM, then it is called as standard hydrogen electrode, SHE, जिसका पोटेंशियल इज आर्बिट्रेटली टेकन एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 वोल्ट, आर्बिट्रेटली फिक्स्ड एज 0, बट स्टैंडर्ड कंडीशन है. अच्छा, व्हेन इट इज एक्टिंग एज एनोड, आपने इसको लेफ्ट साइड पे कनेक्ट किया है, वो एनोड बन गया, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन. तो यहीं से ही देखने का, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0 से वो +1 होगा, मतलब H2 गैस, it forms 2H+ and releases 2 electron. अब यही अगर कैथोड बन गया है तो रिवर्स लिखो, H+ from the solution gains 2 electron to form which gas, H2 gas. ठीक है, सिंपल. एक्टिंग एज एनोड, एक्टिंग एज कैथोड. अब दूसरा इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. तो प्लैटिनियम, उसके सरफेस पे हम लोग क्या कोड कर रहे हैं, O2 गैस ऑफ सर्टेन ATM, and it is dipped into a solution of OH- ions, NaOH, KOH, कोई भी OH- ions of certain molar. Now suppose it is acting as anode, आपने इसको एनोड की तरह किया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा होता है याद रखने का ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड का, यू हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस. सो ऑक्सीडेशन में OH- ions you take it as 4, you take it as 2 मोल. मैं नॉर्मली 4 मोल लेता हूँ टू मेक इट ईजी, मैंने सिखा चुका हूँ कैसा बनेगा. यू टेक 4 मोल ऑफ OH- ions, ऑल 4 विल लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इज लॉस. अब देखो ये क्या बन रहा है, H2O, ये क्या बन रहा है, H2O एंड ONO combines to form O2, so you have O2 gas release plus you form 2 moles of H2O. तो you took 4 moles of OH- ions losing 4 moles of electrons. अगर इसी को आपने 2 moles of OH- ions लिखा होता तो 2 moles of electron देता, तो ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता और ये 1 मोल ऑफ H2O होता लिक्विड फॉर्म में. ओके, सो दिस इज द एनोडिक रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. अगर इसी को ही कैथोड बना दोगे तो उल्टा हो जाएगा. उल्टा हो जाएगा मतलब हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड
plus 2 moles of electron gives 2 moles of OH minus ions aqueous. तो ये हो गया आपका cathodic reaction for oxygen gas electrode. Remember that. The third is chlorine gas electrode, मतलब halogen gas electrode. तो इसके अंदर प्लैटिनियम लिया, उसके सरफेस पे हम लोग ने क्या कोट किया, क्लोरीन गैस ऑफ सर्टेन एटीएम डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयंस. ठीक है, ओन आयंस. व्हेन इट इज एक्टिंग एज एनोड, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब जीरो से -1 से क्या होगा, जीरो. देखो -1 इज लोअर, जीरो इज हायर, लोअर टू हायर जाता है ऑक्सीडेशन में. सो मतलब 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस लिखने का, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे, 2 क्लोरीन विल कंबाइन टू फॉर्म Cl2 गैस. अगर ये कैथोड बन गया तो Cl2 gas will gain 2 electron to form 2 moles of Cl minus in aqueous state. So this is the anodic and cathodic reaction for gas electrode. But you have to remember, in case of non-metal ion or gas electrode, you require a inert metal like platinum, जिसके surface पे आप gas को coat करोगे and then it is dipped into a solution of its own ion and it can act as anode and act as cathode depending upon the potential difference. Okay, so ये दो टाइप के electrode हो गए अभी तक के. मेटल आयन हो गया और दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया है गैस इलेक्ट्रोड. नाउ स्टार्ट विद द थर्ड वन. Now the third electrode is metal sparingly soluble salt electrode. Metal sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt like AgCl, HgCl2, all these are sparingly soluble salt like CdCl2. आपने पढ़ा होगा आयनिक में. Sparingly soluble salt is dissolved to a less extent. तो sparingly soluble salt इलेक्ट्रोड हाफ सेल एग्जाम्पल. अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें एक मेटल लेना है, उस मेटल के सरफेस पे आप कोट करोगे. क्या कोट करोगे, उसी का सॉल्ट, बट वो कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए. फिर आप उसको डिप करोगे, इट इज डिप इनटू सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, कॉमन आयन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मेटल लिया है सिल्वर सॉलिड, उसी के सरफेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट, सिंगल वर्टिकल लाइन मींस डायरेक्ट कांटेक्ट, उसी के सरफेस पे, सिल्वर के सरफेस पे आपने क्या कोट किया, उसी का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज AgCl सॉलिड स्टेट. कोट हो गया है, ओके, कोटिंग हो गया. देन दिस इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ Cl माइनस आयंस. सिंपल. सो Ag is in contact with AgCl which is in dipped into a solution of Cl minus ions. आप कोई जगह पे यहाँ पर HCl लिखा होता है तो एक ही बात हो गई ना, HCl has Cl minus ions in it, एक ही बात हो गई इसके अंदर. Now when it is acting as anode, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड किया, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो रिएक्शन कैसा होगा इसका, सिल्वर का ऑक्सीडेशन, जीरो से वो कितना होगा, +1. तो वी हैव Ag solid Cl minus ions, it is forming AgCl plus losing 1 mole of electrons. कहाँ से गया वो, यहाँ से, जीरो से कितना हुआ वो, +1. मतलब Ag पहले जीरो से +1 हुआ, फिर Cl माइनस से कंबाइन हो गया AgCl एंड यू गेट अ इलेक्ट्रॉन हियर. दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ एनोड. नाउ व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, उसका रिवर्स होगा, दैट इज रिडक्शन. मतलब AgCl +1 से इट गेन्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and forms Ag in solid state plus Cl minus ions left in aqueous state in the solution. Okay guys, simple है. एनोड और कैथोडिक रिएक्शन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं ना. इट कैन एक्ट एज एनोड, इट कैन कैथोड डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल. नहीं, एक और एक बताता हूँ मैं, मर्क्यूरी वाला. बट मर्क्यूरी लिक्विड होता है, मेटल है बट लिक्विड है, तो मर्क्यूरी को पहले कोट करना पड़ेगा. प्लैटिनियम लो, उसके सरफेस पे मर्क्यूरी लिक्विड है, उसको कोट कर दो. ठीक है, तो मर्क्यूरी आपका मेटल हो गया. नाउ दिस मर्क्यूरी लिक्विड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2. मर्क्यूरस क्लोराइड का एक पेस्ट है Hg2Cl2 सॉलिड विच इज डिप्ड टू अ सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयंस. कोई कोई जगह पे KCl लिखा होता है, नॉट फाइन, इट्स फाइन बिकॉज इट हैज Cl माइनस आयंस. नाउ दिस, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा प्लेटिनियम क्यों यूज किया, बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी. ये मेटल है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है,
और ये उसका आयन है, तो सर आपने ये क्यों डाला? बिकॉज मर्क्यूरी लिक्विड है, उसको कोट करना पड़ेगा, दैट इज वाई ओनली फॉर मर्क्यूरी टेक प्लैटिनम हियर. Otherwise, for any other metal, you just write a metal, write the sparingly soluble salt and the ions, common ion जिसमें वो डिप किया आपने. Now this is the representation, याद रखना, this is the representation of Calomel electrode. So here in Calomel electrode we have it's kind of a sparingly soluble salt. You have a mercury from 0 to +1 state. So when it act as anode, simple है, mercury oxidation में जाएगा, will combine with Cl minus ions, it forms Hg2Cl2. So इसको 2 moles ले लो, इसको 2 moles ले लो, simple है, Hg2Cl2 and it will lose 2 electrons क्योंकि 0 से क्या हो रहा है +1, so 2 है मर्क्यूरी तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए. दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड. इफ इट एक्ट एज कैथोड, उसका रिवर्स लिखो, दैट इज Hg2Cl2 का जो पेस्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है टू फॉर्म Hg इन लिक्विड स्टेट प्लस इट फॉर्म Cl माइनस आयंस इन एक्वस स्टेट. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर sparingly soluble salt Calomel electrode. Okay, so remember in sparingly soluble salt a metal is dipped into a solution of its own ion. फिर उसके बाद में but it has to be coated with sparingly soluble salt. Then next is a redox electrode. Redox, a very simple electrode. You take a inert metal, it is dipped into solution of metal ion with very important, two different oxidation state, with two different oxidation state. Inert metal is dipped into a solution of two different oxidation state. Example, suppose मैंने example में ले लिया कि प्लैटिनियम को डिप किया है Fe2 प्लस एक्वस स्टेट कॉमा Fe3 प्लस एक्वस स्टेट, मतलब एक सोल्यूशन है जिसमें फेरस भी है, फेरिक भी, आपने उसमें प्लैटिनियम छोड़ दिया, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बन गया. अच्छा, आप कॉमा लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं, दोनों एक ही सोल्यूशन में है. तो यू टेक अ बीकर हैविंग फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट इनसाइड aqueous solution, you dip a platinum, that becomes the redox electrode. Now अगर ये एनोड की तरह काम किया तो बहुत सिंपल है, देखो +2 से +3 बनेगा और कैथोड में +3 से +2 बनेगा. Oxidation, reduction. So if it acts as anode, it undergoes oxidation. That ferrous ions will form ferric ions and lose 1 mole of electron. Cathode हुआ तो इसका रिवर्स लिखना है आपको, ferric ion in the aqueous media gain 1 electron to form what? Ferrous ions. Reduction. Simple. सेकेंड, इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनियम स्टैनस एंड SN4 प्लस स्टैनिक, तो वही हो जाएगा. अगर इसको आप एनोड बनाओगे तो ऑक्सीडेशन, कैथोड बनाओगे तो रिडक्शन, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम उसी तरीके से काम करेगा ये. ओके, देन वी कैन हैव Cu+1 Cu+2. सो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में बेसिकली याद क्या रखना है कि इनर्ट मेटल इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन विथ 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन खेलते रहे आपस में. ओके, सो दिस इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड. एक और एक इलेक्ट्रोड आता है अमालगम इलेक्ट्रोड, जिसमें अ मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद मर्क्यूरी, सॉरी हाँ, या मर्क्यूरी. अमालगम कब बनेगा? जब आप मर्क्यूरी में कोई मेटल ऐड करते हो. मेटल इज कॉन्टैक्ट विद मर्क्यूरी, डायरेक्टली डिप इनटू मर्क्यूरी विच इज एडेड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. फॉर एग्जांपल जिंक अमालगम इन Zn2+, ZnHg. जिंक को आपने मर्क्यूरी में डाला और उसको Zn2+ के कॉन्टैक्ट में लिया, तो वो अमालगम इलेक्ट्रोड हो गए. बट ठीक है, वो इतना पूछता नहीं है, बट रिमेंबर दैट अमालगम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, वेयर अ मेटल इज डिप्ड इनटू अ मर्क्यूरी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन. मेटल के आयन मतलब जिंक विद Hg डिप्ड इन Zn2+. सो दिस 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आपको इलेक्ट्रोड्स नहीं आएंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, जो भी कॉपी करना है कर लो. देन विल मूव ऑन टू दी सेल इलेक्ट्रोड, cell representation. I'll rub this out first. मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट दिया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल. आपको याद होगा सिंगल वर्टिकल लाइन मींस डायरेक्ट कांटेक्ट. डैनियल सेल का बताया था मैंने. डबल वर्टिकल लाइन मींस सॉल्ट ब्रिज, इनडायरेक्ट कांटेक्ट.
So let us now construct a cell. So we know that a electrochemical cell is made up of two half cell, left oxidation anode negative, right reduction cathode positive, and both of them are connected to each other by a salt bridge. So indirect contact आ जाएगा. This is nothing but salt bridge providing indirect ionic contact. ये हम लोगों को लेके चलना है सबसे पहले. अच्छा, direct contact ले, remember double vertical lines means indirect contact, salt bridge, and single vertical line means direct contact. Okay, now कोई भी सेल को रिप्रेजेंट करना है अगर पेपर पे, तो यू हैव टू रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड आएगा, राइट हैंड साइड पे कैथोड आएगा. पहले हम लोगों को याद रखने का इसके अंदर. ठीक है. फिर सेकेंड थिंग, whenever there is a direct contact you put a single vertical line, whenever there is a indirect contact you put a double vertical line. That is a salt bridge. जब आप दो हाफ सेल को कनेक्ट करोगे, this is one of the half cell, this is the another half cell which is connected via salt bridge. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, फॉर अ सोल्यूशन यू नीड टू मेंशन द मोलैरिटी, द कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रैकेट. गैस है तो यू मेंशन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी आप यूज कर रहे हो, या तो बार प्रेशर जो भी दिया होगा वो यूज करने का. देन फोर्थ पॉइंट, you need to remember that electron flows from anode to cathode and current is from cathode to anode. Fifth point, anode is negative, cathode is positive in nature. Okay. Sixth point, if it is a gas electrode, use platinum, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, platinum यूज करना पड़ेगा to support the gas electrode. Okay. अब मैं अब एक रिएक्शन लिखूंगा, उस रिएक्शन के हिसाब से हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट विल कंस्ट्रक्ट वन सेल. Okay, so when you see the example, the things become very easy. Oh, so let's take an example of suppose मैंने ये example लिया है, Fe सेल कंस्ट्रक्ट करना हम लोगों को, Fe सॉलिड, ठीक है, प्लस बिस्मथ 3+ में लिया है मैंने, दैट इज इन एक्वस मीडिया. यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1 मोलार. एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, दिस इज अ नेट सेल रिएक्शन, NCR, नेट सेल रिएक्शन विल फॉर्म Fe2+ एक्वस 1 मोलार प्लस Bi सॉलिड. ठीक है. नाउ सी प्रॉपर्ली, योर Fe इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to +2. मतलब Fe किस में जा रहा है पहले आइडेंटिफाई करो. Fe इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, Bi +3 से 0 हो रहा है, मतलब इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. अच्छा, जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो एनोड होता है, जो रिडक्शन में जाता है वो कैथोड होता है. एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, कैथोड राइट हैंड साइड पे होगा. बट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ हाफ सेल इज. वी हैव मेटल आयन, वी हैव गैस इलेक्ट्रोड, then we have metal in sparingly soluble salt electrode, and then we have a redox electrode. So यहाँ पर बराबर देखो तो Fe एक मेटल है, 0 में आया सॉलिड, और यहाँ पर उसका एक ही आयन है Fe+2, मतलब इट इज अ मेटल डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन Fe2+. देन वी हैव Bi सॉलिड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Bi3+. तो मतलब पहले हम लोग ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मेटल आयन. ठीक है. अब उसको साइड पे लिखो, दोनों को सेपरेट करो. पहले बताओ इसमें से एनोड कौन सा है, तो एनोड हो जाएगा जो ऑक्सीडेशन में जाएगा, दैट इज Fe. सो एनोड क्या है आपका, दिमाग में सेल रखने का. ठीक है. सो दिस इज एनोड, वी हैव Fe सॉलिड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद Fe2+ एक्वस. मतलब कोई बोलेगा सर ये बीकर है, मैं इमेजिन करूँ कि इसमें Fe2+ है और इसमें हम लोग ने Fe रॉड डाला है, मेरा सही है, वेरी गुड. फिर उसके बाद में एक दूसरा बीकर लिया आपने, सर वहाँ कैथोड बन रहा है. कैथोड क्या है, कैथोड इज Bi solid is in direct contact with Bi3+ aqueous 1 मोलार, ये भी 1 मोलार है. तो एक दूसरा बीकर लिया राइट हैंड साइड पे, वी हैव Bi3+ in it, और इसमें हम लोग ने क्या डिप किया है, बिस्मथ को. फिर आप इसके बीच में क्या डालोगे, सॉल्ट ब्रिज, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, एंड हियर यू हैव M मीटर, कनेक्ट हो गया, बन गया सेल. तो अब ये इमेजिन कर लिया कि भाई, इमेजिन क्या किया है कि Fe लेफ्ट पे है, तो अब मुझे इसका सेल बनाना है. तो सेल में हम लोग क्या याद रखने का, लेफ्ट पे एनोड, राइट इज कैथोड. तो दिस वी हैव इमेजिन. सो नाउ वी हैव Fe रॉड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद Fe2+ सोल्यूशन.
ठीक है. सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ सेल, तो सेल कैसा आएगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज Fe इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ Fe2 प्लस एक्वेस 1 मोलार. देन सोल्यूशन के बाद में सॉल्ट ब्रिज आता है, तो सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन. तो सॉल्ट ब्रिज किसके कॉन्टैक्ट में, नॉट विद Bi, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद Bi3 प्लस. सोल्यूशन में डिप होगा ना, सो यू राइट डाउन Bi3 प्लस एक्वेस 1 मोलार कॉन्टैक्ट विद Bi सॉलिड. दिस बिकम्स एनोड, सो नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, मेटल टू मेटल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट, बन गया सेल. अब इसके अंदर किसी ने 1 मोलार नहीं लिखा, मार्क्स कटेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द रिएक्शन, सो यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है. नाउ इफ someone write this entire cell in this manner, Fe solid, Fe2 plus aqueous 1 molar indirect contact, Bi solid, Bi3 plus aqueous 1 molar. तो ये wrong है. Why it is wrong? Because salt bridge is in not contact with metal. Salt bridge metal से attach नहीं होता है, salt bridge solution में dip होता है. मतलब salt bridge has to be connected with Bi3 plus. So when you start reading from left hand side, it should make sense कि Fe rod dipped in Fe2 plus, फिर Fe2 plus किसके contact में, salt bridge in contact with Bi3 plus किसके contact में, Bi के, like that. It should make sense. Okay. Now let's take a second example to construct a cell. Second example में let's take a reaction. Okay, reaction में ले रहा हूँ OH minus ions. I'm picking one question. OH minus ions, half O2 gas, 180 m plus H2O liquid plus 2 electrons, 2 moles of electrons. और फिर उसी सेल का एक रिएक्शन दिया हुआ है, हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl minus aqueous. Now if you see properly, first reaction is a loss of electron, second reaction is a gain of electron. मतलब डेफिनेटली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन है, तो सर ये कैथोड होगा और यहाँ पर एनोड होगा. मतलब वेरी गुड, पहले आइडेंटिफाई कर लो. फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड देखो. सो यू क्लियरली सी OH माइनस एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. यू कैन सी Cl2 गैस. सो सर इट इज अ क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड. मतलब वेरी गुड, सबको सेपरेट लिखो. तो चलो सेपरेट रिप्रेजेंट करते हैं. एनोड कौन बनेगा, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. तो फॉर ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड यू रिक्वायर प्लैटिनियम, जिसके सरफेस पे हम लोग क्या कोड करेंगे, O2 गैस. कितना ATM का लिखा हुआ है, 180 m. ठीक है, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन, दैट इज OH माइनस आयंस. एक्वस मीडिया एनोड हो गया. अब कैथोड देखो, तो कैथोड में क्लोरीन गैस है. सो अगेन यू रिक्वायर प्लैटिनियम फॉर द सपोर्ट ऑफ क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस एट 180 m which is in direct contact with Cl minus aqueous 1 molar. ठीक है, सपोज ये भी 1 मोलार है. नाउ जॉइन एनोड कैथोड टू मेक अ सेल. तो सेल कैसा बनेगा इसके अंदर, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में. तो यू स्टार्ट विथ प्लैटिनियम, O2 गैस, 180 m, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ OH माइनस आयंस, एक्वस मीडिया 1 मोलार, फिर सॉल्ट ब्रिज. इन दोनों के बीच में, एनोड कैथोड के बीच में सॉल्ट ब्रिज. जब सॉल्ट ब्रिज होगा तो फिर प्लैटिनियम से स्टार्ट नहीं करने का, फिर यहाँ से स्टार्ट करना. यू गो इन दिस मैनर, यू स्टार्ट इन हियर लाइक दिस. नाउ यू सॉल्ट ब्रिज इज इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन, तो Cl माइनस आयंस, एक्वस मीडिया 1 मोलार विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद Cl2 गैस 180 m विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्लैटिनियम. तो ये आपका कैथोड हो गया. दिस इज एनोड, इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम वन प्लैटिनियम टू द अदर. मतलब एनोड टू कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ से यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, करंट. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट. तो बोथ ऑफ देम आर गैस इलेक्ट्रोड इन दिस. सो विच एवर इलेक्ट्रोड इज गिवन, विच एवर रिएक्शन इज गिवन, फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट कि कौन सा इलेक्ट्रोड है. देन यू अलाइन देम विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सॉल्ट ब्रिज, बट सॉल्ट ब्रिज मेटल से नहीं होता, हमेशा याद रखना. सॉल्ट ब्रिज इज इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन, याद रखने का. अगर सॉल्ट ब्रिज के आसपास आपने मेटल लिखा है मतलब गलती की है. Remember that. Now sometime a cell will be given to you. आपको सेल दिया है और उसका रिएक्शन लिखना है. वो भी सिंपल है. देखते हैं. रिएक्शन से हम लोग ने सेल बनाया.
अब सेल दिया होगा और अभी हम लोग इसका रिएक्शन लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ टू डिस्कस दैट कि सेल का रिएक्शन कैसा लगता है, उसी सेल में से पिक करने का। फॉर एग्जाम्पल एक सेल दिया है, द सेल इज प्लैटिनियम, यहाँ पर माइनस चार्ज दे दिया है, इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ Fe3 प्लस Fe2 प्लस एक्वस, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट Cl माइनस एक्वस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ Hg2Cl2, सॉलिड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ Hg लिक्विड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ प्लैटिनियम, यहाँ पर प्लस दे दिया। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच सेक्शन इज एनोड विच इज कैथोड। तो हमेशा उसका चार्ज देखने का, कभी कभार क्या होता है यहाँ प्लस दिया होता है माइनस दिया होता है फर्स्ट, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, फर्स्ट सी द चार्ज। इन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी अ नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये एनोड है, और राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड हो गया। नो आइडेंटिफाई, नो क्लियरली यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। देखो मर्क्यूरी वाला कैलोमल मैंने जो दिया था। नाउ रेडॉक्स एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब +2 से +3 होना चाहिए, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब +1 मर्क्यूरी से 0 हो जाएगा। तो दोनों के रिएक्शंस मैंने बता चुका हूँ आपको हाफ सेल्स में। सो नाउ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एनोड पे, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, दैट इज Fe2 प्लस इन एक्वस स्टेट forms Fe3 plus in aqueous state, lose 1 electron, 1 mole of electron. So this is a oxidation reaction taking place at anode. Then cathode पे होगा reduction, तो reduction में मैंने बताया था कि Hg2Cl2 in the solid state +1 का चार्ज है, will gain 2 electrons to form 2 moles of Hg in liquid state plus you get a Cl minus ions in aqueous state। तो देखो +1 से जब दोनों इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे एक एक Hg, it will form a 0. तो this is a reduction reaction. Now, whenever you write down net cell reaction, you have to balance the electron. तो यहाँ पर 2 moles है, यहाँ पर 1 mole है. So multiply first equation by 2. Now you add them, तो this get cancel out. So क्या मिला? Net cell reaction 2 moles of Fe2 plus aqueous plus Hg2Cl2 solid, left hand side gives 2 mole of Fe3 plus aqueous plus 2 moles of Hg liquid plus 2 moles of Cl minus aqueous. So this is net cell reaction for the entire cell. Simple है, identify करो एनोड कैथोड क्या है, उसके रिएक्शन लिखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, add them and write the NCR. So this is how the cell has been represented with the help of a different half cells. Okay, I hope you understood this part.